Namaste and welcome to this new video. And before we begin, first of all, a very happy new year to everyone. I really wish that everything that you have wanted, maybe earlier and couldn't get through for whatever XYZ reasons, you get to have the hold, the control over everything this year. All your wishes come true, your family is blessed, and may you have a very healthy life. Do not underestimate the importance of physical and mental health. With this note, we are going to start our first video of this particular year. And I think this was the most relevant video because, when we try to introspect, especially as an aspirant for such a huge competitive examination, the first question that comes to our mind is that 2025 now is already here. The 1st of January, more than half of the day is already gone. And is it still possible to clear the prelim 2025? Because the date is already announced and the date is 25th of May. Now, that's a question that I'm pretty sure most of you who would have introspected would be. एक क्या होता है ना एक्चुअली एक सेल्फ डाउट भी आ जाता है मन में कई बार, इवन इफ वी आर प्रिपेयर्ड वेल और इफ वी हैव मल्टीपल फेलियर्स इन द पास्ट. आई वोंट कॉल इट एज फेलियर, वो बहुत ही नेगेटिव वर्ड है. रादर आई वुड से कि अगर ऐसा कभी हुआ है कि हमने क्वालिफाई नहीं किया है, हमने उन डिसक्वालिफिकेशंस को फेस किया है. सो रादर देन कॉलिंग इट एज फेलियर, आई थिंक डिसक्वालिफिकेशन वुड बी अ बेटर टर्म फॉर दैट. उसका एक बैगेज होता है. इफ वी आर हैविंग a first, you would say the first attempt in this particular year, that would also be a huge baggage, because then we would have the feeling that okay, we are competing with people who have already been giving this examination for so many years, etc, etc. N number of things would be there, and therefore that self doubt, that question, that anxiety, everything might be there. Trying to answer that for you, not taking much of your time, because what I really believe here is that if you have that self belief, if you feel that even if you have done, let's say, 50% of the work that you were supposed to do. Now, please understand, if somebody has not done anything, then this question itself is not valid. Because is it still possible to clear वाला क्वेश्चन भी तभी आना चाहिए जब आपने कुछ काम करा है उसके लिए. I agree and I understand it's possible that whatever you are supposed to do, that has not been done to that extent. ठीक है, लेकिन बिल्कुल ही नहीं करा है तो फिर अभी इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते. Now this entire session will take care of your remaining days for CSE prelim 2025. ठीक है, अब इसको मैंने कैसे ब्रेक डाउन करा है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो फर्स्टली व्हाट वी नो कि ओके, डेट तो आ गया है, जनवरी स्टार्ट हो चुका है, 1st of January इज गॉन, हम उसको नहीं काउंट कर रहे हैं. फाइन. सो द रिमेनिंग डेज इन जनवरी 30, फेब्रवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30 एंड मे के हम 20 दिन ही ले रहे हैं, बिकॉज 25th को तो आपका पेपर ही है. बीच के 3-4 दिन ऑफकोर्स विल गो अगेन इन एंग्जाइटी, रिपीटेशन, रिविजन, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई एम नॉट काउंटिंग दोज डेज. एक्चुअली मे को पूरा काउंट ही नहीं करना है फॉर दिस एंटायर प्लान पर्पस, एंड दिस इज एंटायरली a revision plan. So, when we come to the end of this video, you will give this answer to yourself. I will not give you this answer that is it still possible to clear. You will have to see based on the plan. और चलो अगर हम ये भी ना बोलेंगे क्लियर हो सकता है कि नहीं, बिकॉज ये तो हमें एग्जाम हॉल बैठने के बाद ही पता लगता है. वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट वी अंडरस्टैंड इफ वी आर एटलीस्ट प्रिपेयर्ड pretty well before sitting for this paper or on the day when we are going to give the exam. उतना तो हम मान सकते हैं. अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को देना है. ठीक है, चलो. तो हमने मई के वो 20 दिन तो हटा ही लिए है ना, दैट इज फॉर रिविजन. वी विल टॉक अबाउट इट बट इन द एंड. सो हमारे हाथ में ये 4 महीने हैं. सो अप्रॉक्सीमेट, बिकॉज अब जनवरी का एक दिन जा चुका है, सो आई एम काउंटिंग वेरी प्रिसाइजली. ठीक है, आपको दिखेगा सारे डेट्स के कैलकुलेशन मैंने वैसे ही करे हैं. So it is coming out to be 119 days, right? Even in that, it's not possible for us to study every day of every month, right? So I am considering rounding it off to 110 days. ठीक है, 2 दिन पर महीने का आई एम नॉट इंक्लूडिंग. तब भी एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, बट अगेन उसको भी माइनस करो. सो राउंडिंग इट ऑफ टू 110 days, not counting the May for the time being. Okay, let us quickly check.
Now 110 days has to be divided into multiple GS subjects. I have not written CSAT here. I'll just write here CSAT because again उसमें आपको ये देखना है कि आप कौन से महीने में कितना CSAT कैसे prepare कर रहे हो. CSAT altogether has a different strategy. So I am for the time being just dividing it into all the different GS subjects that we are supposed to do. ठीक है, very quickly, and this is absolutely from prelims point of view, considering you have done the subjects at least once. अगर आपने एक या दो कोई छोटे सब्जेक्ट्स नहीं भी कर रहे हैं तो इट्स ओके, दैट कुड स्टिल बी मैनेज समहाउ. ठीक है, बट यू शुड नॉट बी एन एब्सोल्यूट बिगिनर. और अगर आप बिल्कुल भी बिगिनर हो तो फिर आप अपने रिस्क पे ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके एक ट्राई ले सकते हो, बट अगेन देयर इज नो श्योरिटी अबाउट इट. ठीक है, तो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर विथ यू. वेरी क्विकली ब्रेकिंग इट डाउन, यू नो दीज 110 days फॉर यू. आई रिपीट, में हम अभी इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं इसमें. ठीक है, चलो. So ancient medieval art and culture history, I am giving it 15 days. Now please firstly understand this is a very general division. From my point of view, from my experience, and I have around 8+ years of teaching experience, talked to n number of aspirants, अपनी भी कुछ समझ रही है, उनकी भी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए एक जनरल डिविजन रखा है बेस्ड ऑन व्हाट पीपल यूजुअली फील अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट्स. दिस कैन एब्सोल्युटली बी एडजस्टेड, rather this should be adjusted based on your own comfort zone with a particular subject and what is your preparation level of that particular subject. ठीक है, उसको आप एडजस्ट करके अपने हिसाब से बना लेना. ये आपको एक बेस देने के लिए है, आपको एक ड्राफ्ट देने के लिए है, ताकि इफ़ यू आर एब्सोल्युटली इन एंग्जाइटी और फीलिंग क्लूलेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो उससे आपको थोड़ा मेंटल सेटिस्फैक्शन यहाँ से मिल जाएगा कि इज इट स्टिल डुएबल. ओके, एंड at least one subject specific mock is needed. तो ये जो नंबर ऑफ डेज हमने करे हैं उसमें हमें प्रिप तो करना ही है, हमें क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट. ठीक है, PYQs तो लगाना ही है, जो भी टॉपिक्स रहेंगे दैट इज लाइक नॉन नेगोशिएबल. उसको कहने की भी ज़रूरी नहीं होनी चाहिए, दैट शुडंट बी इवन स्टेटेड, ऑल्दो आई विल स्टेट इट लेटर. बट ठीक है, वन एटलीस्ट वन सेक्शनल टेस्ट एटलीस्ट. ज़्यादा लगा पाओ गुड, बट ठीक है, एक करेंगे. तो एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर 15 days, 5 days ईच. अगेन दिस यू कैन वेरी, क्योंकि अब कहीं से भी देखो क्वेश्चन आते हैं एंड यू नेवर नो कौन से सेगमेंट को कहाँ से इंपॉर्टेंस दे दिया जाएगा. नाउ व्हेन आई से दिस आर्ट एंड कल्चर, this talks about those topics which are not included specifically in ancient and medieval, because there are many art and culture topics which are overlapping with them, but उसके अलावा भी there are certain topics, ठीक है, जो सिर्फ आर्ट एंड कल्चर पोर्शन में आते हैं, तो उसको उस हिसाब से एडजस्ट करना है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रफली आई हैव गिवन 10 days, बिकॉज अगेन इन सबका वेटेज जो है प्लस माइनस होते रहता है. देर इज नो फिक्स्ड वेटेज दैट यू कैन गो अहेड विथ. ओके, जोग्राफी इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट, बहुत कुछ करना होता है. फिजिकल जोग्राफी, इंडियन जोग्राफी, ह्यूमन जोग्राफी, इकोनॉमिक जोग्राफी, एंड देन ओवरलैपिंग विथ मैप्स एंड एवरीथिंग. मैप्स यहाँ भी आता है बिकॉज अगेन मैप्स हैज़ मल्टीपल रोल्स टू डू. अब तो हिस्ट्री में भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जोग्राफी में भी. तो टेक्निकल है, सो 20 days. ठीक है, पॉलिटी यूजुअली पीपल फाइंड इट ईजी, दैट इज़ वाई आई से कि जनरल डिविजन करा है. बट नाउ द काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क्ड ऑन पॉलिटी इज ऑल्सो नॉट दैट ईजी कि बस लक्ष्मीकांत के लाइन्स उठा के पूछ दिए, ऐसा नहीं होता है. बट एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स आई थिंक 15 days इज अ डिसेंट टाइम फॉर पॉलिटी रिविजन. ओके, इकोनॉमी अगेन लाइक जोग्राफी इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट. current affairs has a major role in this. Budget economic survey has to be covered in this, ठीक है, जो कि वैसे भी बाद में आएगा. So my plan is accordingly made for that. So I have given it 20 days. Environment and ecology 10 days. Science and tech 10 days. These are not to be neglected. ठीक है, ये और ये तो यूजुअली सब कर लेते हैं. बट AMAC, that is ancient medieval art and culture, environment and science and tech, these are not to be excluded or not to be ignored. ठीक है, इफ़ यू आर वेरी वीक इन साइंस एंड टेक, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसका नंबर ऑफ डेज बढ़ाओ, यहाँ कहीं से घटाओ. अगेन यू नो इट वुड वेरी. ठीक है, दिस इज ऑल्सो टेक्निकल, इन्वायरमेंट बेस से हल्के में नहीं लेने का है. सो दीज आर द थिंग्स यू विल रिमेंबर. नाउ इन सबको करने के बाद भी हमारे पास 10 दिन बचते हैं, विच आई हैव केप्ट फॉर मिसलेनियस और करेंट अफेयर्स. वैसे करेंट अफेयर्स विच आर नॉट इंक्लूडेड हियर, बिकॉज ऑल ऑफ दीज सब्जेक्ट्स विल ऑल्सो हैव देयर ओन करेंट अफेयर्स. ठीक है, कल्चर का, हिस्ट्री का भी होगा, जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक का तो अपना करेंट अफेयर्स होगा.
अपार्ट फ्रॉम देम द मिसलेनियस थिंग्स लाइक इंटरनेशनल रिलेशंस के, ठीक है, उससे रिलेटेड भी मैप्स के, government schemes के, some social matters. Now they at times ask some questions of sports, some question of defense also was asked in the previous year. So अब इन सब को भी मिसलेनियस में हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कुछ भी कर लेती है अब. एंड दिस इज अगेन जस्ट अ वेरी बेसिक जनरल बाइफिकेशन. अगर आप इसको 80% भी जस्टिस दे के कर पा रहे हो, सो यू आर एक्चुअली फार अहेड ऑफ मैनी 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 पीपल. ठीक है, सो दैट शुड गिव यू द कॉन्फिडेंस. एंड सी सेट आपको इन सब में साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा साथ ले लेके चलना है. ठीक है, अब और समझते हैं मंथ वाइज. ये तो मैंने आपको जनरल नंबर ऑफ डेज के हिसाब से दे दिया. हाउ शुड वी प्रायोरिटाइज इट? Again, the priorities can vary depending on what is your preparation level, what is your comfort zone. But again, a general thing from my point of view, I am telling you. So जनवरी में हमारे पास कितने दिन हैं? 30 दिन बाकी हैं. ठीक है, बट मैं 2 दिन पर महीने काउंट ही नहीं कर रही हूँ. आई एम नॉट इंक्लूडिंग 2 days एवरी मंथ. ठीक है, तो उसको आप साइड कर देते हैं. सो लेट्स से यू आर स्टडिंग फॉर 28 days. ठीक है, नाउ द नंबर कैन डिफर. मे बी यू आर जस्ट स्टडिंग 25 days हियर, बट देन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज इन फेब्रुवरी. अकॉर्डिंगली वो आपको देखना पड़ेगा, बट अगेन जस्ट अ बेसिक थिंग. सो आई वुड से कि एक थोड़ा आसान सब्जेक्ट लो और एक थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट लो. ठीक है, द रीज़न ऑफ पुटिंग, एंड आई एम गिविंग यू द रीज़न ऑल्सो. आसान में सबसे आसान सबको क्या लग सकता है? या तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लगेगा या तो पॉलिटी लगेगा. और कुछ तो किसी को लगता नहीं है आसान. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट. बट हिस्ट्री में थोड़ा एंड में इसलिए रख रही हूँ बिकॉज हिस्ट्री में देर आर सर्टेन फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर. सो जितना आप टुवर्ड्स एंड उसको याद करोगे उतना आसान रहेगा. ठीक है, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव दैट प्रिपरेशन एटलीस्ट वंस बिफोर रिविजन. मतलब मार्च से पहले या मार्च के सेकेंड हाफ से पहले आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एक बार ख़त्म हो जाना चाहिए. ठीक है, एक बार आपने सब्जेक्ट समझा हुआ एटलीस्ट एक बार, तो भी रिविजन, फिर मल्टीपल रिविजन से चीज़ें आसान हो जाती हैं. अब हम बात करें, सो इकोनॉमी वाई आई एम टेलिंग हियर बिकॉज आफ्टर दैट जब फेब आ जाएगा आगे आपके पास बजट इकोनॉमिक सर्वे होएगा. सो फॉर दैट टू अंडरस्टैंड यू शुड हैव योर बेसिक्स प्रिपेयर्ड फर्स्ट, राइट? सो दिस विल इंक्लूड रिविजन एंड covering up of anything, any static topic that you have probably not done. Fine. And then polity, like little, because one heavier and one lighter subject you have to accordingly do. आप यहाँ पे अपने कंफर्ट के हिसाब से जोग्राफी या हिस्ट्री का भी या फिर साइंस टेक कुछ भी रख सकते हो, बट आई हैव केप्ट इट लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स दे आर करंट अफेयर्स, सो स्टैटिक करते जाएंगे उसके साथ का करंट अफेयर्स करते जाएंगे. ठीक है, सो आई हैव गिवन 20 days for economy, 15 for polity, which makes it 35 days of total, right? But then हम तो अभी 28 दिन पढ़ रहे हैं. सो 7 दिन हम इन सब्जेक्ट्स का अगले महीने में लेके जाएंगे. नेक्स्ट महीने में विल कैरी फॉरवर्ड. ओके, फेब्रवरी में वी हैव 28 days, बट लेट्स से वी आर स्टार्टिंग फॉर 26 days. सो यहाँ का 7 दिन रिमेनिंग ऑफ इकोनॉमी एंड पॉलिटी वुड बी डन. ठीक है, बचेगा हमारे पास लेट्स से 20 days. मैं 20 इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज मैंने साइंस एंड टेक को 10 और इन्वायरमेंट को 10 दिया हुआ था, 10 days, तो दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग 20 days. बट आपके पास यहाँ 27 हो रहा है और हम तो 26 ही डे पढ़ रहे हैं. सो दैट वन डे यू कैन एडजस्ट बिकॉज वो आपके टाइम टेबल के हिसाब से हो जाएगा, है ना, प्लस माइनस जहाँ पे भी एडजस्ट करना है. अगेन आई एम गिविंग दीज सब्जेक्ट्स क्योंकि दीज सब्जेक्ट्स वुड रिक्वायर मल्टीपल रिविजन्स और ये यूजुअली पीपल इग्नोर कर देते हैं. सो आई एम पुटिंग इट इन बिटवीन सो दैट यू आर डन विद 2 मेजर सब्जेक्ट्स. देन आप इसको हल्के में ना लो, इसलिए इसको भी यहाँ पे ख़त्म कर लो. ठीक है, तो वो मेंटल रिलैक्सेशन हो जाएगा दैट हमने 2 भी कर लिया. एंड मेनी थिंग्स आर ओवरलैपिंग इन दिस ऑल्सो, जैसे क्लाइमेट वगैरह की चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा मज़ा भी आएगा आपको करने में. ठीक है, थोड़ा मोनोटनी ब्रेक हो जाएगी फ्रॉम दिस काइंड ऑफ अ थिंग. देन मार्च में इफ़ वी हैव 31 days एंड लेट्स से वी आर स्टार्टिंग ओनली फॉर 29 days. सो आई हैव एलोकेटेड जोग्राफी के लिए 20 days एंड मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 10 days. तो ये 30 day का बन रहा है. अगेन यू कैन एडजस्ट 1 day अकॉर्डिंगली, है ना. बाद में भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो या उसमें नंबर ऑफ डेज कम प्लस माइनस कर लेना. बट दिस इज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन आई हैव डन फॉर डिफरेंट मंथ्स. अब आता है अप्रैल, 30 days है, हम तो 28 दिन पढ़ रहे हैं मान लो, 2 दिन माइनस करके. सो एंशियंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को 15 days एंड वट एवर मिसलेनियस वॉज देयर 10 days, तो भी ये 25 days हो रहा है. ठीक है, हमें तो 28 days पढ़ना था, तो यहाँ के एक एक डे का एडजस्टमेंट हो सकता है.
So any backlog can be adjusted. I hope that a rough timeline is clear for you. What we are supposed to do in the month of May, as I said, हम सिर्फ 20 डे का प्लान लेके चल रहे हैं, है ना. एग्जाम 25th को है. सो 21st 22nd 23rd 24th इसको बाद में देखा जाएगा. उस समय क्या सिचुएशन होगी अभी से सोच लोगे तो नथिंग इज गोइंग टू वर्क. फोकस ऑन द फर्स्ट 20 days और लेट्स से फर्स्ट 15 days ओनली. उसमें टाइम डिविजन अपना बांटना है, वो देखना है कि रिविजन कैसे करना है. बट फॉर दैट टू हैपन टिल अप्रैल एवरीथिंग शुड बी फिनिश्ड, तभी तो कर पाएंगे. सो लेट अस क्विकली सी मॉक टेस्ट का रिविजन इज इम्पॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बट मेजरली what revision is supposed to be done in the last month or the month you are actually going to appear is the PYQs revision, because इसी का pattern, इसी का latest trend, इसी के words, इसी के you would say you know the language that they use in the paper, etc etc, time management etc etc, everything is around this. ठीक है. सो एटलीस्ट थ्राइस हमें सॉल्व करना है 2013 से 20. आप इसके पहले का भी कर ले रहे हो, वेल एंड गुड, 2013 के पहले का भी. बट इस साल सिलेबस में मेजर चेंज, ऑल्दो ये एक्चुअली ईयर मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रीलिम्स के लिए ना हम 2011 से भी कंसिडर कर सकते हैं. बट मैं आपको फिर भी इतना दे रही हूँ ताकि इतना तो अच्छे से हो ही जाए. आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर टू यू. ठीक है. बट प्राइमरीली दिस ईयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर GS मेंस बिकॉज द सिलेबस वाज चेंज्ड हियर. ठीक है. न्यू सब्जेक्ट जैसे एथिक्स इंट्रोड्यूस हुआ था, पैटर्न बदला था. बट प्रीलिम्स के लिए एक्चुअली इट शुड बी 2011 to 2024. बट हम 13 लेके चल रहे हैं थोड़ा हल्के में करने के लिए. एटलीस्ट थ्राइस इट शुड बी डन. ठीक है. इस टाइम पे इसको पहले भी करना है. दैट हैज़ टू बी डन वंस व्हेन यू आर डूइंग दीज सब्जेक्ट का प्रेपरेशन एंड रिविजन, तब भी करना है. फाइन. एंड देन व्हाट आर दी अदर थिंग्स वी विल डू इन मे. मैप्स पे बहुत फोकस करेंगे, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, IR के, इन्वायरमेंट के. ठीक है. एंड देन फैक्ट्स जैसे इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क्स हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, स्पीशीज हो गया, एटसेट्रा, कन्वेंशंस हो गए, एटसेट्रा एटसेट्रा. अ लॉट ऑफ फैक्ट्स आर हियर. It is in different subjects also, but just giving you some major examples. And then history, though it is full of facts. ठीक है. चाहे इसका कोई भी सेगमेंट उठा लो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. तो उन पॉइंटर्स पे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हो गए पॉलिटी में. ठीक है. इकोनॉमिक में कोई स्पेसिफिक डेटा है जो ध्यान रखना है, ट्रेंड है जो ध्यान रखना है, मान लो फिजिकल डेफिसिट का क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो सारी चीज़ें हैज़ टू बी फोकस्ड इन द मंथ ऑफ मे. ठीक है. तो अगर आप नोट मेकिंग पर्सन हो, काइंड ऑफ लाइक जैसे मतलब आई एम वन ऑफ द नोट मेकिंग पर्सन, तो अगर आप उस टाइप के हो तो आप उसको रिविजन में इंक्लूड कर सकते हो. एल्स वट एवर सोर्सेज यू आर यूजिंग, जस्ट गो थ्रू दैट. सो आई होप एक रफ रिविजन प्लान जो कि ऐसे भी सब्जेक्ट वाइज भी बाइफर्केटेड है एंड विद इन मंथ ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज बाइफर्केटेड है. नाउ इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एंड यू शुड हैव योर ओन डिविजन. जब आपका फिक्स नंबर ऑफ डेज डिसाइड हो जाएगा फॉर वट एवर सब्जेक्ट यू आर एलोकेटिंग, तो यू शुड ऑल्सो हैव अ क्लियर बाइफर्केशन कि इस दिन मेरे को ये टॉपिक, मान लो साइंस एंड टेक हैज़ टू बी रिवाइज्ड इन 10 days, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 10 days में टॉपिक्स क्या क्या होंगे, पॉलिटी का कैसे डिविजन होगा 15 दिन में, एट्सेट्रा. So that should also be clear to you. But here, because I am giving it as a general thing, you can just quickly vary and accordingly आप अपना बना सकते हो. So now I hope you are in a position to answer this for yourself. Is it still possible to at least sit for the exam on 25th of May well prepared? Anything that you would want to write about this, or anything that you have to say, please write in the comment section. I would read it, I would reply there. ठीक है. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी ओवर टेलीग्राम और ऑन दी अंजन कलश IAS ऐप, बिकॉज आई एम डूइंग ऑल द. अच्छा, अगर किसी को बस ये जानना है कि मेरे तरफ से क्या क्या कंप्लीट हुआ है, सो वो मैं क्विकली बता दूँ. एक छोटा सा नोट मेकिंग का सेशन मैंने पूरा अंजन कलश IAS ऐप पे, आपको यू वुड गेट द लिंक्स ऑफ द एप्स इन द डिस्क्रिप्शन. आई हैव कम्प्लीटेड. दिस इज़ अ वेरी नॉमिनल प्राइस कोर्स, वेरी वेरी नॉमिनल. ठीक है. और ये बहुत हेल्प करेगा किसी को भी अपना पूरा स्ट्रैटेजाइज करने में. मोस्टली इट विल बी रेलिवेंट फॉर एनीबडी जो आगे के ईयर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट अभी वाले अगर इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं. वेरी क्विकली गोइंग अहेड, एंशियंट मिडिएवल मैंने पूरा ख़त्म करा दिया है. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd of Jan. ठीक है. विच इज़ टुमारो.
and I'll just show you the details about it. Geography is already undergoing. So these two courses, Modern Indian History and Physical plus Indian Geography, it will be completed in February end. Okay, I'll try to do it even before that, but February end is the latest that it would be done. Economy and Politica, abhi I have not taken any course, and these are also I have not taken. But NCRT's ke two courses I have taken. So if I have to quickly show you, so this is already completed very quickly. नोट मेकिंग वाला जो है, पहले तो आप ये समझ लो कि ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज, ठीक है, till 2nd of January there is a 10% discount, and one student can actually take two discounts. I mean, on two courses you can take, so it will be a 20% discount for you. So HNY, Happy New Year, HNY 2025 2025. HNY 2025 is the code. You can take 10% discount on two courses of your choice, and this is valid till 2nd of January. ठीक है, तो इन prices जो यहाँ mention है उन पर discount already available है. So these are the original prices, but you will get the course on discounted price so that you can check. But this I have just launched. ठीक है, so Modern Indian History starting, इसका orientation video भी है, आप check कर सकते हो. Already course introduction जो भी है सब कुछ किया हुआ है, starting from 2nd Jan. This is already running and they will be completed Feb end तक में. ठीक है, this is already completed, ancient medieval, and these NCRTs are already completed. Fine. So I think this entire thing gives you an idea about what I am doing personally from my side on the Anjan Kalash IS app. Rest, if you just want to do it on your own, that is absolutely okay. My whole purpose was to actually tell you about how do you bifurcate between the subjects, how do you divide this, and per subject को भी कैसे divide किया जा सकता है. Topic wise division, if you want, separate videos will be needed for that, exactly giving you the topic and discussing things about how we can prepare, or revision series if you want, you can let me know, but those things would require input from your end as well. So I hope, as I was telling, you are in a better position now to give this answer to yourself. Is it now still possible to clear or sit prepared for prelim 2025? See you in the next video. A lot to come this year. Take care till then. Bye bye.